Students, today we'll start with components of a vector. Give heading components of a vector. Components of vector. Correct. Student, what is meant by components? Means parts. Components of the vehicle or components of any other instrument. That means it is having another meaning as parts. Correct. Let student. I am saying a vector. There is a vector x vector is equal to y vector plus z vector. Correct. तो y और z दोनों मिलेंगे तब जाके x बनेगा. That means if we'll add x, y and z, then we'll get x. Then y and z are components of vector x. We can say these are the components. Y and z are components or parts of vector x. Of vector x. Okay. अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करें, कल जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ के बारे में आपको बता रहा था. लेट दिस इज a वेक्टर. करेक्ट. Let this is b vector. Correct. So the resultant vector is becoming c. That means this is the c vector and the c vector is equal to a vector plus b vector. मतलब c vector में a vector और b vector दोनों मिलके है उस पे. So we can say a and b are components of vectors. A and b, we can write a and b are parts because a and b join करके c vector बना. So we can write a and b are components of c vector. A and b are components of c vector. Components of c vector. Correct. Students, ट्रायंगल लॉ की तरह एक पॉलीगॉन लॉ भी है. पॉलीगॉन लॉ क्या है? Let this is one side of a triangle. Let this is a vector. Correct. Let this is b vector. Another side. Polygon. Let this is c vector. Correct. And let this is d vector. Correct. So देखो, तो क्या कहता है पॉलीगॉन लॉ कि if many vectors of same order are represented by the various sides of a triangle of a polygon in same order, then the closing side, ये वाला हो गया मेरा closing side. This is the closing side and the closing side in opposite order will be the resultant vector. Let this is d vector. Listen, कैसे उसको प्रूव करेंगे? फ्रेंड, दिस इज a, दिस इज b. अगर इन दोनों को मैं क्लोज कर दूं तो ये वाला क्या हो जाएगा? a प्लस बी. करेक्ट. फिर a प्लस बी और c, अगर इसको मैं फिर क्लोज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? दिस वेक्टर विल बी हाउ मच? a प्लस बी प्लस सी. देखिए a प्लस बी प्लस सी. अगर फिर मैंने d के साथ a b c d लिया तो लेट दिस इज e वेक्टर. तो ये फिर ये एक वेक्टर हो गया a प्लस बी प्लस सी और ये एक वेक्टर हो गया d. करेक्ट. सो जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये ऑपोजिट ऑर्डर पे है. सो दिस रिजल्टेंट वेक्टर विल बी हाउ मच? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर. दैट इज इक्वल टू e वेक्टर. That means a vector and b vector and c vector and d vector. एक दो तीन चार, चारों वेक्टर मिलेगा तभी जाके e वेक्टर बनेगा. So you can say कि a b c d are components of e. We can also say here a vector, b vector and c vector and d vector are components of e vector क्योंकि वो चारों वेक्टर मिलके ही e वेक्टर बना है. Are components of e vector. Correct. So these are the components. Student, magnitude of a component may be more than the magnitude of the main vector. मान के चलो स्टूडेंट, देखो अगर मैं a को मिलाऊं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों वेक्टर को मैं मिला रहा हूं, तो ये जो c वेक्टर आ रहा है जरूरी नहीं कि वो हमेशा उससे ज्यादा होगा, वो छोटा भी हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट ना? वो भी हम देखेंगे प्रूफ करके. तो ये भी एक पॉइंट हम लिख सकते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंपोनेंट, यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंपोनेंट. Magnitude of a component may be magnitude of a component may be more than the magnitude of the main vector. May be more than the magnitude of the main vector. The magnitude of the main vector. ठीक है. Coming to that, just write, because student, rectangular components of a vector.
write rectangular components of a vector. Rectangular components of a vector. ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि देखो मैंने अभी ये लिया था, थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किए थे, सर दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर and this is going to be the resultant vector, correct? This is a plus b and that is equal to c vector. So a and b are parts of v. लेकिन अगर ये a वेक्टर और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, that means if this is a vector and this is b vector, so this is 90 degree, both are orthogonal, तो तभी भी रिजल्टेंट वेक्टर ये होता ना, एट दैट टाइम आल्सो c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b वेक्टर. बट उसी टाइम पे a और b को हम कंपोनेंट्स, नॉर्मल कंपोनेंट्स तो बोलेंगे, बट एक एक्स्ट्रा चीज हम स्पेशल कैटेगरी पे लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और भी बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. यस और नो? सो राइट, when there are two components of a vector, right, there are when there are two components of a vector, when there are two components of a vector and these are perpendicular to each other, and these are perpendicular to each other, then these are called rectangular components of the vector. Then these are called rectangular components of a vector. ठीक है, दैट मीन्स ये जो a और b है, a and b are rectangular components of c. ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था, the example that I gave here, okay, given here, so we can write here a vector and b vector because both are perpendicular. We can write a and b are rectangular components of c vector. We can write are rectangular components, और orthogonal भी बोल सकते हैं, rectangular components of c vector. Correct? These are the rectangular components of c vector. स्टूडेंट कल जैसे हमने मान के चलो, मैंने अभी अगर इस कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो अगर मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहा हूँ, अभी आई एम टेकिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट? लेट दिस इज x axis and this is y axis, correct? I just took a vector like this. Let this is r vector, okay, and it is having some x coordinate, correct? It is also having some y coordinate, huh? Let the y coordinate is rx, yes or no? Let the y and the y coordinate is ry, correct? X coordinate is rx and y coordinate is ry, yes or no? And it is making an angle theta, and this is perpendicular, yes or no, students? Yes or no? Yes, sir. So here if I'll take sine theta, this is ry and Yes. rx, correct? If I'll take, this is one vector and this is also one vector, and this is the resultant vector, correct? That means r vector is equal to rx vector plus ry vector, yes or no? Rx and ry are the components of r, yes or no? And if I'll take here sine theta, let I be taking here sine theta is equal to p by h, na? That means that will be ry by Yes, r. sir. So that means ry is equal to how much? R sine theta, correct? If I'll take cos theta, then cos theta is equal to how much? B by h, that is rx by r vector. So if I'll take rx, then rx will be how much? R cos theta. This is ry, r sine theta, and this is rx, r cos theta. So here we can also write rx is equal to r cos theta and ry is equal to r sine theta. Yes or no? That means the components of r are becoming rx and ry, rx and ry, and rx is horizontal to the ground. So इसलिए rx को क्या बोलते हैं हम? Horizontal component भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? Horizontal component. ठीक है, और आर वाई को हम क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट, एंड बोथ आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बिकॉज़ बोथ आर परपेंडिकुलर, यस और नो? आर वाई इज आल्सो नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट? आर वाई इज आल्सो नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट, आर एक्स इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यस और नो? दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज पैरेलल. थीटा के साथ जो अटैच रहता है वो क्या हो जाता है? आर एक्स,
और जो थीटा को परपेंडिकुलर रह जाता है वो होता है आर वाई, करेक्ट? दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर वाई, एंड दिस आर वाई इज नथिंग बट वी कैन राइट दैट इज आर साइन थीटा, एंड दिस आर एक्स इज नथिंग बट वी कैन राइट आर कॉस थीटा, करेक्ट? तो सिंपली अगर मुझे इस तरह की कुछ डायग्राम्स मिलेगा कहीं पे भी, आई विल शो वेरियस एग्जांपल्स आई विल गिव। मान के चलो ये वाला एक वेक्टर है, लेट दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज थीटा, so I can also write the component along x axis is r cos theta, ठीक है, and the component along y axis is r sin theta. So this r cos theta and r sin theta are the rectangular components of r, understood or not? r cos theta and r sin theta rectangular components of r. इसको भी बोलते हैं components of vector और resolving the vectors, vector resolution एक आता है, resolve करना वेक्टर को, मतलब r वेक्टर का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और cos थीटा का मतलब इसका ये मतलब है कि r जो है वो कुछ नहीं है, वो एक वेक्टर इस तरफ काम कर रहा है r cos थीटा, दूसरा वेक्टर इस तरफ काम कर रहा है r sin थीटा, तो उनका रिजल्ट टर्न का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है, यस और नो? द डायग्राम मींस दैट ओनली। स्टूडेंट्स, let me to give you example to get better clarification. Let you are having a coordinate system like this, correct? You are having a coordinate system, this is x axis and this is y axis. I just gave you a, let this is a vector and this is theta, correct? So that means you draw the perpendicular, correct? This value is how much? Ax na, Yes, sir. and that is equal to a cos theta, right? And you take the line along this vector is what? Yes, sin theta. The sin theta, that is ay, that is ay, that is ay is equal to a sin theta, okay? Yes or no? So here I can write a vector can be written like this, semi ax I cap, यूनिट वेक्टर मैंने हेल्प लिया, प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट? नो प्रॉब्लम। ये ए एक्स मूव किया है along x एक्सिस एंड ए वाई मूव किया है along y एक्सिस, करेक्ट? ये सब नो, सो दैट इज ए Yes, sir. वाई जे कैप, समझ पे आ गया? अगर ए एक्स को अगर मैं रिप्लेस करूं, दैट कैन बी रिटन एज ए cos थीटा, आई कैन आल्सो राइट द ए वेक्टर एज हाउ मच? ए cos थीटा आई कैप, इट कैन बी आल्सो बी रिटन ए cos थीटा आई कैप प्लस ए sin थीटा जे कैप, अंडरस्टूड? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए दोनों पॉजिटिव है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए दोनों पॉजिटिव है, गेटिंग ना? तो कौन सी क्वाड्रेंट में वेक्टर Yes. कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आई कैप होगा या जे कैप होगा, ये सब नो? दिस इज प्लस एक्स, करेक्ट? दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई, दिस इज माइनस वाई। तो अगर पहली क्वाड्रेंट में अगर कोई रहता है तो यहाँ पर आई एंड जे बोथ आर पॉजिटिव, ये सब नो? सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर रहता है तो आई इज नेगेटिव, जे इज पॉजिटिव, ये सब नो? थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई रहता है तो दोनों नेगेटिव, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये सब नो? फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोई रहता है तो आई कैप प्लस माइनस जे कैप, इस तरह रहेगा ना चीजें? कौन सी क्वाड्रेंट में वो वेक्टर लाई कर रहा है उसके हिसाब से ये साइन डिसाइड होगा। ए एक्स ए वाई जो है, दे कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, यस और नो? ax and ay can be negative or positive, you can write ax and ay can be negative or positive, can be negative or positive according to the direction of the components, right? according to the according to the direction of the components, direction कौन सी क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, according to the direction of components, just note it down. Students, let's do some examples on that. मुझे अभी let's just get an idea कि how to find the vectors. मान के चलो मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, तो if the diagram is like this, that means this is I cap, correct? This is J cap, yes or no? And this is what? This is J cap and this is what? This is minus I cap, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना,
अगर कोई वेक्टर इसी डायरेक्शन पे काम कर रहा है, अगर कोई वेक्टर if any vectors act along this direction, yes or no, और मैंने यहाँ पर लिया लेट आई कैप जो है वो 1 यूनिट मैंने लिया और जे की एलन पे मैंने 1 यूनिट लिया, गेटिंग माय पॉइंट ना। सो ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ऑल एग्री और नॉट? क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे 1 लिया हूँ, मैग्नीट्यूड मैंने ये दे दिया, और वाई पे मैं भी 1 लिया हूँ। सो ये जो वेक्टर आया है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, यस सर नो। ठीक है, उसी तरह अगर मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया, लेट Yes, sir. मैंने मान के चलो कुछ ऐसा ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, और मैंने ऐसा कुछ दिखाया आपको कि दिस इज द वेक्टर, लेट दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, करेक्ट। और बी वेक्टर का ये जो हम लिए हैं दिस इज 3 यूनिट्स एंड दिस इज ये जो हम लिए हैं दिस इज 2 यूनिट्स, करेक्ट। तो अगर अभी बी वेक्टर को लिखने के लिए बताया जाएगा तो आप क्या लिखोगे, तो ये प्लस एक्स है ना और ये माइनस वाई है, करेक्ट। 3 तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस एक्स मतलब आई क्या, और माइनस वाई मतलब माइनस जे क्या, है ना। तो बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, करेक्ट। गेटिंग और नॉट? मैग्नीट्यूड तो हम निकाल देंगे स्क्वायर करके, दैट इज नॉट द थिंग, बस मैं रिप्रेजेंट करना आपको बताना चाहता हूँ। समझ पे आया ये? Yes, sir. अगर मैंने ऐसा कुछ लिया, नाउ आई टुक जस्ट समथिंग लाइक दैट, इन थर्ड क्वाड्रेंट मैंने कुछ लिया, लेट, ठीक है, दैट मीन दिस इज माइनस वाई माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस वाई, करेक्ट। इस तरह कुछ मैंने लिया एक वेक्टर, लेट दिस इज सी वेक्टर, ओके। और इसका जो मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स उसने गया है 2 यूनिट्स एंड अलोंग वाई लेट गया है इसने 1 यूनिट। तो हाउ टू रिप्रेजेंट द सी वेक्टर, कैसे कितना होगा, माइनस एक्स मतलब माइनस आई क्या अपना, माइनस वाई मतलब माइनस जे क्या अपना, दैट मीन्स उसने एक्स पे माइनस 2 आई कैप गया है, करेक्ट, और वाई पे कितना गया है माइनस जे कैप, गेटिंग और नॉट, यस सर नो। Yes, sir. Getting. उस पे आ रहा है ना सारे। तो दूसरा Yes, बात, sir. अगर अगर कंपोनेंट्स मतलब ए जो लिए थे हमने, ए इज इक्वल टू क्या लिए थे हमने, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, करेक्ट। मतलब एक्स पे कितना मूव किया है, वाई पे कितना मूव किया है, और ए एक्स और ए वाई नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, आई कैप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डिपेंड करता है कि कौन सी क्वाड्रेंट में किस लाइन पे जा रहा है, ठीक है। बट अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्शन नेगेटिव साइन हैज नथिंग टू डू विद मैग्नीट्यूड ना। if I will be finding direction or magnitude, then what I will do, ax square plus ay square root under, this will give me the magnitude, yes or no? Yes, sir. Just note it.